Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. Today we are going to discuss the 18th Amendment in the Constitution of Pakistan, and you know that it is a topic of current affairs, Pakistan affairs, as well as it can come in essay, and also it is a main topic of constitutional law. So let's begin with it. तो सबसे पहले हम इस अमेंडमेंट का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ये है कि दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. So we know that the Constitution of 1973 was established by the Constituent Assembly of Pakistan under Zulfikar Ali Bhutto, and it was enforced on 14th August 1973. But we can say that it was never implemented in its true essence, because time to time there have been rule of non-democratic regimes which obviously centralized all authority to themselves. जैसा कि General Ziaul Haq, when he imposed martial law, he introduced 8th amendment to the constitution, and according to that amendment he concentrated all power in his office, and he introduced a semi-presidential form of government. So और अगर हम आगे की बात करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एरा में he introduced the 17th amendment. So basically these amendments were introduced into the constitution, which shifted the system of government from parliamentary to semi-presidential system. And these amendments basically deprived provinces of their legitimate autonomy, that is their constitutional right, as per the theory of federalism. Because as per the theory of federalism, in a true federation, center is weaker than the provinces or the states. So these amendments, this 8th and 17th amendments, were introduced to deprive provinces of their legitimate autonomy, their legitimate right to autonomy. So to get rid of all this, 18th amendment was introduced into the Constitution of Pakistan in 2010 under PPP, People's Party of Pakistan's government. The 18th amendment was passed on 8th April 2010, and it was signed by the then President Asif Zardari on 19 April 2010. And this amendment brought changes to 102 articles out of the 280 total articles of the Constitution. मतलब कि ये जो अमेंडमेंट है 8 अप्रैल 2010 में पास की गई थी, जब पीपीपी का रूल था पाकिस्तान में, ठीक है, एंड इट वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, ऑन 19 अप्रैल 2010, ठीक है. सो बेसिकली इसमें 102 आर्टिकल्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू दिस अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो टोटल आर्टिकल्स हैं दोज आर 280 आर्टिकल्स, जिसमें से 102 आर्टिकल्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू दी 18th अमेंडमेंट. सो अगर हम ब्रॉडली उन चेंजेस की बात करें तो देयर वर ब्रॉड चेंजेस इन दी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एंड सम प्रोविंशियल इश्यूज वर एड्रेस्ड, एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी वाज एड्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस, एंड इसके अलावा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस वाज गिवन, ठीक है. इसके अलावा नेम्स ऑफ प्रोविंसेस वर चेंज्ड एज पर द विश ऑफ पीपल. मोरओवर देयर वर पावर्स ऑफ जुडिशरी जिनमें सर्टन चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी. उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, अ फ्यू फंडामेंटल राइट्स वर एडेड टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी, सम प्रोविंशियल इश्यूज एड्रेस किए गए थे. इसके अलावा जुडिशरी की कुछ जो पावर्स हैं उसमें चेंजेस एड्रेस की गई थी, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐड की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 18th अमेंडमेंट. नाउ विल डिस्कस कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी विद रिस्पेक्ट टू ईच कैटेगरी. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो हमें ये बात पता चलेगी कि द प्रेसिडेंट वाज मेड द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, जैसा कि एक ट्रू फेडरेशन में होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें क्या किया गया कि ही वॉज जस्ट मेड अ टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट. और अगर हम 18th अमेंडमेंट से पहले की बात करें तो प्रेसिडेंशियल पावर्स वर टू मच, जो कि दैट इज़ अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ अ फेडरेशन. President was a very strong executive,
but in 18th amendment president was made just the ceremonial head of the state. इसके अलावा आर्टिकल 58(2)(b was abolished because आर्टिकल 58(2)(b के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि ही कैन डिसॉल्व असेंबलीज. आर्टिकल 58(2)(b को अबॉलिश किया गया. इसके अलावा द प्रेसिडेंट वाज बार्ड फ्रॉम यूनिलैटरल अथॉरिटी ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन एनी प्रोविंस. बिफोर 18th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो यूनिलैटरली किसी भी प्रोविंस में जो है इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था एंड सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने हाथ में रख सकता था. बट दिस पावर वाज टेकन अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंट थ्रू 18th अमेंडमेंट. बल्कि इसके अलावा इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ये था कि द प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोक्लेम emergency on account of war or internal disturbances that seem to be out of control of the provincial governments. मतलब कि अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, तो इन दैट केस ही कैन इम्पोज एमरजेंसी, अदरवाइज नो ही कैंट. और ये बात की गई है आर्टिकल 232 में. आर्टिकल 232 क्लॉज 1 सेज दैट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. मतलब वही बात कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो या लॉ एंड ऑर्डर काइंड ऑफ सिचुएशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन का कोई थ्रेट हो, तो इन दैट केस ही कैन इम्पोज और प्रोक्लेम एमरजेंसी. ठीक है. उसके बाद क्लॉज 2 में है कि इसके पार्ट 2 में है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल, अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस शैल बी रिक्वायर्ड. मतलब कि अगर इन दैट केस प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज करना चाहता है तो ही विल रिक्वायर अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस. यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट रखी गई. ठीक है, कि जो प्रोविंशियल असेंबली होगी उस प्रोविंस की, वहाँ से रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए टू इंश्योर कि वाकई वहाँ पे जो है हालात इतने ख़राब हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं और वहाँ पर ज़रूरत है वाकई में कि इमरजेंसी इम्पोज की जाए और उस सूबे के जो मामलात हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में दिए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में दिए जाएं. तो इन दैट केस ये इंश्योर करने के लिए जो है प्रेसिडेंट विल रिक्वायर अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस. इसके अलावा ये भी कहा गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency shall be placed before both houses of Majlis-e-Shura, that is parliament, for approval by each house within 10 days. लेकिन इन केस अगर रेजोल्यूशन वहाँ से पास नहीं होती एंड द प्रेसिडेंट फिर भी ही वांट्स टू इम्पोज एमरजेंसी इन दैट प्रोविंस, तो फिर क्या होगा कि ही विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज सेनेट एंड नेशनल असेंबली. अगर विद इन 10 डेज उससे प्रेसिडेंट को ये अप्रूवल मिल जाता है फ्रॉम द पार्लियामेंट दैट ही कैन इम्पोज एमरजेंसी, तो दैट मीन्स के ही कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. हिज इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी विल बी लेजिटिमाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम दी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो यहाँ पर जो है पहले जो था प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो यूनिलैटरली इम्पोज कर सकता था एमरजेंसी, लेकिन 18th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट से ये पावर्स ले ली गई और एमरजेंसी इम्पोज करने के लिए एक रिप्लेसमेंट, एक अनदर इंट्रिकेट मेथड डिज़ाइन किया गया जो अभी मैंने आपको बताया. दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दी आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज़ नीड ऑफ एमरजेंसी, तो पहले तो ये बताया गया कि किन केसेस में ही कैन इम्पोज एमरजेंसी, जैसे कि वॉर लाइक कंडीशंस हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन का थ्रेट हो, तो इन दैट केस ही कैन इम्पोज एमरजेंसी. बट उसके लिए 2 मेथड्स बताए गए कि ही विल रिक्वायर द रेजोल्यूशन टू बी पास बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर शुड बी एन इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी, तो फिर दूसरा मेथड ये है कि वो जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लें फॉर एमरजेंसी. ठीक है. अगर पार्लियामेंट से उन्हें अप्रूवल मिल जाता है तो देन ही कैन इम्पोज एमरजेंसी एंड दैट विल बी अ लेजिटिमाइज्ड एक्ट. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इट. इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के पावर में चेंजेस की गई वो ये थी कि प्रेसिडेंट कैन नो लॉन्गर यूनिलैटरली अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर and this was given in article 213.
पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट जो है ही यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 213 इसमें ऐड किया गया जिसके तहत प्रेसिडेंट से ये पावर ले ली गई एंड आगे भी ही कैन अपॉइंट, ही विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट आफ्टर कंसल्टेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। मतलब कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि who will be the chief election commissioner and then that name will be sent to the president for his approval, ठीक है। तो ये एक चेंजेस भी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अगर हम यहाँ पर आर्टिकल 213 की बात करें तो इसमें ये लिखा है कि देयर शैल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन आगे इसमें ये लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली forward 3 names for the appointment of a commissioner to a parliamentary committee for hearing and confirmation of any one person. Then, the parliamentary committee to be constituted by the speaker shall comprise 50% members from the treasury benches and 50% from the opposition parties based on their strength in parliament to be nominated by the respective parliamentary leaders. आखिर में इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस देयर इज़ नो कंसेंसस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन देन ईच शैल फॉरवर्ड सेपरेट लिस्ट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर कंसिडरेशन विच में कन्फर्म एनी वन नेम। तो बेसिकली आर्टिकल 213 में ये लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेगा, बट उसका प्रोसीजर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंसल्ट करेंगे विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। जैसे कि आजकल द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली इज़ शहबाज शरीफ। तो दोनों आपस में कंसल्ट करेंगे, ठीक है, एंड फॉरवर्ड 3 नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर, और वो मिलकर 3 नेम्स डिसाइड करेंगे जो कि आगे भेजे जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर हियरिंग एंड कन्फर्मेशन ऑफ एनी वन नेम। उसके बाद जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसे कौन बनाएगा? स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर शैल कंप्राइज। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी उसमें 50% जो है गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे और 50% उसमें ऑपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स होंगे। तो उसके बाद जो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली की कंसल्टेशन के बाद जो लिस्ट बनाई जाएगी 3 लोगों की, वो फॉरवर्ड की जाएगी पार्लियामेंट्री कमेटी को, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कोई एक नाम डिसाइड करेगी एंड दैट विल बी फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। So basically this was the method that was provided in the constitution for the appointment of the chief election commissioner. तो somehow इस चेंज के बाद एक जो मेजर कंसर्न होता है पार्टीज़ का कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, वो दैट कंसर्न हैज़ बीन एड्रेस टू सम एक्सटेंट। बिकॉज पहले प्रेसिडेंट जो था अपनी मर्ज़ी का कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देता था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जब इलेक्शन होता था तो ये हमेशा यही कंसर्न उठाया जाता था कि रिगिंग हुई है। तो दैट कंसर्न हैज़ बीन एड्रेस टू सम एक्सटेंट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस particular procedure for the appointment of the chief election commissioner. Let's move on. जो नेक्स्ट पावर प्रेसिडेंट से ली गई वो ये ली गई कि जैसे कि कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो वो फाइनली जाता है प्रेसिडेंट टू साइन द बिल, ठीक है, एंड देन इट बिकम्स अ लॉ। बट इन केस प्रेसिडेंट जो है ही रिटर्न्स द बिल टू द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर क्या होगा कि पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में उसे बिल को रिकन्सिडर किया जाएगा कि किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर वो पास हो जाता है अगेन फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो फिर देन इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट हु हैज़ टू साइन इट विद इन 10 डेज, ठीक है। मतलब जो प्रेसिडेंट है दोबारा से उस बिल को वापस नहीं कर सकता, ही कैन नॉट वीटो द बिल एंड ही हैज़ टू साइन विद इन 10 डेज। और अगर विद इन 10 डेज वो साइन नहीं होता, दैट मीन्स कि उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा कि इट इज़ पास्ड एंड इट हैज़ बीन साइंड एज पर आर्टिकल 75। ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में मेंशन की गई है कि फेलियर टू डू सो विल बी डीम्ड टू हैव बीन साइंड। मतलब कि प्रेसिडेंट उसको साइन करता है विद इन 10 डेज या नहीं करता, उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर ये किया जाएगा कि इट हैज़ बीन साइंड। सो बेसिकली ही हैज़ नो पावर्स टू वीटो एनी बिल्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट इज़ जस्ट अ सेरेमोनियल head of the state, and which is obviously in consonance with the true spirit of the parliamentary federalism. इसके अलावा जो नेक्स्ट पावर प्रेसिडेंट से ले ली गई वो ये थी कि बिफोर द earlier than the 18th amendment, president used to appoint governors on his will. He usually appointed governors of distinct ethnicities.
मतलब कि अगर बलूचिस्तान है तो वहाँ पर कोई सिंध का गवर्नर रख दिया या पंजाब का गवर्नर रख दिया, तो इससे क्या होता था कि प्रोविंसेस में ग्रीवियंसेस डेवलप होती थी, की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में ग्रीवियंसेस इमर्ज होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस कंसर्न को अवॉइड करने के लिए इसमें 18th अमेंडमेंट में ये भी इंट्रोड्यूस कि ही विल दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट द गवर्नर्स यूनिलैटरली। मतलब कि आर्टिकल 101 क्लॉज 1 में ये लिखा गया कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि एक तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा, बट अपनी विल पे नहीं, बल्कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो प्रोविंस होगा उसी का ही जो नेटिव होगा उसी को ही एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। देयर विल बी नो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट एथनिसिटी। मतलब कि अगर पंजाब है तो वहाँ पे पंजाब का ही जो नेटिव होगा उसको गवर्नर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अगर सिंध है तो वहाँ पे सिंध का ही गवर्नर अपॉइंट होगा, बलूचिस्तान है तो वहाँ पे बलूचिस्तान का ही गवर्नर अपॉइंट होगा और अपॉइंटमेंट की जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यू कैन ईजिली कॉम्प्रहेंड कि किस हद तक लिमिट की जा चुकी हैं प्रेसिडेंट की पावर्स बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द 18th अमेंडमेंट। एंड ऑल्सो हमने ये भी टाइम टू टाइम इसमें देखा कि किस तरह प्रेसिडेंट की पावर्स को लिमिट करके we have taken a step forward towards a strong federation or to come in consonance with the true essence of the parliamentary federalism. Okay, now let's move on to the changes made regarding provincial issues. तो यहाँ पर मेनली जो है प्रोविंसेस के नेम्स के हवाले से या फिर जो प्रोविंसेस की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और जो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है उसके हवाले से इसमें चेंजेस किए गए थे। जैसा कि NWF was renamed as Khyber Pakhtunkhwa. This was a long-standing demand of the Pashtun people. They wanted the province to be named as Khyber Pakhtunkhwa after their ethnicity, which is their identity. So इसकी जो खैबर पख्तूनख्वा पश्तून लोगों की जो ये डिमांड थी उसको पूरा करते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस was renamed as खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिंध के स्पेलिंग लिखे गए थे उसमें SIND लिखा जाता था, लेकिन द स्पेलिंग्स वर चेंज टू SINDH। उसके अलावा बलूचिस्तान की स्पेलिंग्स भी चेंज किए गए थे, जिसमें इट वाज रिटन एज BALUCHISTAN, देन इट वाज चेंज्ड टू BALOCHISTAN। ऑलराइट, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज इंट्रोड्यूस दैट एनी constitutional amendment that would have the impact of changing the boundaries of a province must be approved by the provincial assembly of that province। मतलब कि अगर किसी भी प्रोविंस की बाउंड्रीज़ को चेंज करना है, यानी या तो उसको बढ़ा सकते हैं उसकी बाउंड्री को, या तो उसकी बाउंड्री को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे किसी भी किस्म की बाउंड्री चेंजिंग करनी हो तो उसके लिए उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। जैसा कि आफ्टर फाटा मर्जर के लिए फाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया, तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असेंबली है उससे अप्रूवल लिया गया था, और जब KPK की प्रोविंशियल असेंबली ने अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद फाटा को मर्ज कर दिया गया था विद खैबर पख्तूनख्वा। एंड द मर्जर ऑफ फाटा विद KPK इज़ द 25th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यू नो कि वी हैव काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसके तहत जो प्रोविंसेस के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है या किसी भी किस्म का डिस्प्यूट है या डिसएग्रीमेंट है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है बाय अरेंजिंग अ सिटिंग ऑफ CCI। और इसके अलावा अगर फेडरल और प्रोविंसेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसके हवाले से भी उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए CCI की मीटिंग कंडक्ट की जाती है। सो इट वाज मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द CCI शुड मीट every 90 days, और ये मेंशन किया गया था इन आर्टिकल 154 क्लॉज 3। एज पर आर्टिकल 154 क्लॉज 3 इट वाज मैंडेटेड दैट CCI shall conduct a meeting every 90 days. And now we will talk about the financial autonomy to the provinces. So 18th amendment के अंदर basically provinces को financial autonomy दी गई है in various forms, but one main aspect is that of the NFC award. NFC is National Finance Commission Award, and it is basically a mechanism for distribution of resources, and this NFC award is mentioned in Constitution in Article 160. और इस NFC award के तहत there is concept
of vertical distribution of resources and horizontal distribution of resources. जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, और जो शेयर प्रोविंसेस का है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में वो शेयर अमंग प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग प्रोविंसेस. और 18th अमेंडमेंट के तहत ये किया गया कि जो पहले जो था सेंटर का फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शेयर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस, लेकिन अब जो 18th अमेंडमेंट में जो चेंजेस लाई गई हैं उसके तहत क्या किया गया कि जो प्रोविंसेस का शेयर है दैट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 47.5% टू 57.5%. मतलब कि प्रोविंसेस का जो फाइनेंशियल शेयर है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 47.5% टू 57.5%, और जो सेंटर को एलोकेट किया गया वो शेयर रिड्यूस कर दिया गया टू 42.5%. So this NFC award is mainly an aspect of 18th amendment that ensures provincial autonomy in terms of financial autonomy. इसका मतलब है कि 42.5% जो है रिसोर्सेज का शेयर वो सेंटर अपने पास रखेगा, और जो 57.5% शेयर है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग प्रोविंसेस बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया. और वो 4 क्राइटेरिया हैं. नंबर 1 इज़ पॉपुलेशन, नंबर 2 इज़ पावर्टी और बैकवर्डनेस ऑफ द प्रोविंस, एंड नंबर 3 इज़ दैट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन, एंड नंबर 4 इज़ दैट ऑफ इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी. ये एक फार्मूला डिवाइस किया गया प्रोविंसेस के बीच में शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. मतलब कि इसमें पॉपुलेशन को 82% वेट दिया गया, पावर्टी और बैकवर्डनेस को 10.30% वेट दिया गया, एंड देन रेवेन्यू कलेक्शन एंड जनरेशन को 5% वेट दिया गया, एंड इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को 2.70 वेट दिया गया. दिस टोटल मिक्स अप टू 100%. सो ईच प्रोविंस पे ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, और इसके तहत जिसका ज़्यादा नंबर बनेगा तो ऑब्वियसली उसको उस हिसाब से ज़्यादा शेयर किया जाएगा. तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग द प्रोविंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द NFC अवार्ड. इसके अलावा जो है NFC अवार्ड के बारे में ये भी कहा गया कि जो प्रोविंसेस के लिए जो एक शेयर एलोकेट किया गया है दैट इज़ 57.5%. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया कि जब भी NFC अवार्ड दिस इज़ गिवन टू ईच प्रोविंस एवरी 5 years. ठीक है, तो फिर ये कहा गया कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी तो दिस शेयर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. इट कैन बी इंक्रीज्ड बट दिस शेयर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. सो ये एक कंडीशन रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके अलावा एक और स्टेप भी लिया गया, एक और मेजर भी लिया गया जिससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया जा सकता था. और वो ये था कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की जो अथॉरिटी थी वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दी गई. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. ठीक है, सो बिफोर द 18th अमेंडमेंट जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था वो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद कलेक्ट करती थी थ्रू FBR. ठीक है, लेकिन अब इसमें 18th अमेंडमेंट के बाद ये कंडीशन रख दी गई कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है दैट विल बी अंडर द प्रोविंसेस. मतलब कि दैट अथॉरिटी was transferred to provinces. From now on, only provinces will collect sales tax on services. जैसा कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड और आई थिंक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जैसे प्रोविंसेस में ये रेवेन्यू बोर्ड्स और अथॉरिटीज इस्टेब्लिश कर दी गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स. So these were some very important steps taken to ensure provincial autonomy and to address provincial issues. Now let's move on to our next area that was addressed through the 18th amendment, that was of judicial and legal issues. तो अगर हम लीगल इश्यूज़ की जुडिशल इश्यूज़ की बात करें तो 18th अमेंडमेंट में जो है 17th अमेंडमेंट और LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को अबॉलिश कर दिया गया. ठीक है, 17th अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल ज़िया-उल हक का नेम था उसको भी रिमूव कर दिया गया. मोरोवर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड. इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जुडिशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग तो वो है अमेंडमेंट इन आर्टिकल 6 दैट इज़ ऑफ हाई ट्रीजन. आर्टिकल नंबर 6 was amended to protect the constitution from its abolishment because क्या किया गया कि आर्टिकल 6 में पहले था सस्पेंड
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ सस्पेंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें फर्दर वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे कि इट इज़ रिटन इन दी आर्टिकल 6 क्लॉज नंबर 1 कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन एबेंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. And clause number 2 में लिखा है कि any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause number 1 shall likewise be guilty of high treason. So जैसे कहा जाता कि ताकि आगे से कोई भी एक्सक्यूज़ ना दिया जा सके, पहले सिर्फ सस्पेंड का वर्ड लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जब अपने मार्शल लॉ के थ्रू सस्पेंड करके बाद में जो डिक्टेटर्स थे वो अपने मार्शल लॉ को लीगलाइज करते थे कॉन्स्टिट्यूशनली बाय सेइंग कि दे ओनली सबवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और दे हेल्ड इन अबेंस, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है जस्टिफाई किया जाता था मार्शल लॉ को और सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड एनी सच कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल नंबर 6 में तमाम वर्ड्स को डाल दिया गया, जैसे कि सबवर्ट है, हेल्ड इन एबेंस है और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट है और सबवर्ट है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं एक ही आर्टिकल में लिख दिए गए ताकि हर लिहाज से जो कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश करने का जो चांस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। Moreover, Article 270 was added to the Constitution, which basically invalidated the unconstitutional endorsements. Means कि previous declarations of martial law were declared unconstitutional, and it was said that an act of high treason cannot be validated by any court as done in the past. जैसा कि validate किया गया था martial laws को past में. For example, in State versus Doso case जो है अयूब खान के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया था। मोरोवर इन बेगम नुसरत भुट्टो केस जो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था उसको वैलिडेट किया था कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा सर ज़फ़र अली शाह केस में जनरल परवेज़ मुशर्रफ लॉ मार्शल लॉ वाज वैलिडेटेड बाय द कोर्ट। Another important legal concern that was addressed by the 18th Amendment was that of the appointment of superior judges. So in that regard, a special judicial and parliamentary commission was established for the nomination and appointment of judges. मतलब कि ये कहा गया कि जो भी सुपीरियर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशियल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों साथ मिलकर नॉमिनेट करेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस। तो 18th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते थे, लेकिन अब ये एक नई रिकमेंडेशन दी गई 18th अमेंडमेंट में कि सुपीरियर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, एंड दे बोथ विल टुगेदर डिसाइड ओवर द वैकेंसीज इन दी सुप्रीम कोर्ट्स एंड दी हाई कोर्ट्स। और जुडिशियल कमीशन के थ्रू जो काम होगा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए वो डिफाइन किया गया इन आर्टिकल 175A, जिसमें बताया गया कि देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन that will mainly consist of Chief Justice of Pakistan and 4 most senior judges of Supreme Court, and then former judge of Supreme Court nominated by Chief Justice of Pakistan. इसके अलावा there will be a Federal Minister for Law and Justice, and then Attorney General Pakistan and Senior Advocate by Pakistan Bar Council. मतलब these all people will together form a judicial commission that will decide appointment on any vacancy in Supreme Court. ठीक है, this was the procedure for the appointment of superior judges in the Supreme Court, and it is mentioned in Article 175A. And अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी हो तो कहा गया कि जो अबव बैच था, तो मैंने अभी जो आपको तमाम लोग बताए कि जो जुडिशियल कमीशन को फॉर्म करेंगे, तो हाई कोर्ट की वैकेंसीज पर अपॉइंटमेंट करने के लिए जुडिशियल कमीशन में कुछ और भी लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस प्लस सीनियर एडवोकेट बाय कंसर्न्ड बार काउंसिल। मतलब कि इन तमाम लोगों की एक जुडिशियल कमीशन बनाई जाएगी, एंड देन दे टुगेदर विल डिसाइड कि किसकी अपॉइंटमेंट करनी है इन हाई कोर्ट। So the procedure goes on as one person against each vacancy decided by majority of membership and then sent to the parliamentary committee. मतलब कि जो जुडिशियल कमीशन है वो मेजॉरिटी के साथ हर वैकेंसी पे एक अपॉइंटमेंट
के लिए एक एक नेम सजेस्ट करेंगे एंड देन जब सजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दैट लिस्ट विल बी सेंड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अप्रूवल. Now let's see what is parliamentary committee composed of. It will be composed of Senate members, that will be 4 members from Senate and 4 members from National Assembly. ठीक है, और Senate में से भी दो persons government के होंगे और 2 opposition में से होंगे. Similarly, from National Assembly as well, 2 people will be from government and 2 will be from opposition. So total composition is 8 members. So these 8 members will form a parliamentary committee and finally decide one person for each vacancy. Then parliamentary committee receives names from the Judicial Commission and then it is in the hands of parliamentary committee to either give approval or reject the names and send back the list to the Judicial Commission for other names. So if the parliamentary committee rejects the suggestion, then Judicial Commission has to come up with new names or the new candidates for the vacancy, and parliamentary committee can but parliamentary committee can reject only once. Lekin it was binding upon the parliamentary committee to give a reason for rejection of the names of candidates. So this was the whole procedure to be adopted for the appointment of superior judges. Moreover, the removal of judges is carried out by the Supreme Judicial Council, that is composed of judges and headed by Chief Justice. So here the main idea is that by 18th amendment there was an addition of the parliamentary committee to oversee the appointment of judges. That is kind of a check on the power of judiciary. Okay, now let's move on to the 4th area of the 18th amendment which was addressed. It was about the fundamental rights of citizens. So in this area, Article 10A section was inserted in the Article 10 of the amendment, and according to that the right of fair trial is given to criminals or the convicted and they shall be provided chances to prove themselves innocent and out of charge. मतलब Article 10 में Article 10A insert किया गया जिसके तहत ये कहा गया कि whoever is accused of or is charged with a crime, he shall be given a right to fair trial. मतलब उसे फेयर ट्रायल का राइट दिया जाए और उसे हर वो अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे ही इज़ एबल टू प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ इनोसेंट एंड आउट ऑफ चार्ज. Also there was insertion of Article 25A that provided that all citizens shall receive free education. According to this article, the state was asked to provide free education, free compulsory education to all the citizens between ages 5 and 16 years. मतलब कि जो 5 से 16 साल के जो citizens होंगे उनको जो state है वो compulsory education provide करेगी and this is their right to free education. Moreover, Article 19 was inserted in this amendment in which gives the citizens the right to information in all matters of public importance, subject to reasonable restrictions. Means कि जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं या जो भी पब्लिक इश्यूज़ हैं उस हवाले से सिटीजन्स को राइट दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. ऑलराइट, सो मेनली फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आर्टिकल 25A को ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि स्टेट जो है 5 to 16 ईयर्स के जो सिटीज़न हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी फ्री एजुकेशन. इसके अलावा आर्टिकल 19 के तहत ये कहा गया कि citizens have the right to information in all matters of public importance. Moreover, Article 10A भी इसमें इंसर्ट किया गया जिसके तहत ये कहा गया कि the right of a fair trial is given to the accused or the criminals and they shall be provided chances to prove themselves innocent and out of charge. So these were some basic amendments made regarding the fundamental rights of citizens. And now let's critically analyze the 18th amendment. अगर हम इसका critical analysis करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि this amendment, the 18th amendment into the Constitution of Pakistan has strengthened Federation of Pakistan. Because अगर हमें फेडरेशन का कॉन्सेप्ट पता हो तो वो ये है कि in a federation center is weaker than the states or the provinces. तो you know कि जो amendments introduce की गई through 18th amendment, जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मींस ऑफ 18th अमेंडमेंट, तो वो प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली दिस हैज़ स्ट्रेंथेंड
the provinces and comparatively weakened the federal government, the center. So this is the reason that it is called as a landmark development in the constitutional history of Pakistan, and it is considered that it has strengthened the federation because it has extensively provided provincial autonomy to the provinces. जिस तरह के जो प्रोविंसेस के इख्तियारात हैं पहले वो सेंटर डिसाइड करता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के थ्रू वो तमाम इख्तियारात कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिए गए प्रोविंसेस को। जैसा कि लेजिस्लेटिव लिस्ट का हमने बात की कि किस तरह अथॉरिटी दी गई, किस तरह सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके अलावा NFC अवार्ड के थ्रू प्रोविंसेस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई। इसके अलावा ये कहा गया कि जो गवर्नर्स होंगे वो यूनिलैटरली अपॉइंट नहीं किए जा सकते प्रेसिडेंट की तरफ से, और इसके अलावा जो नेटिव होगा प्रोविंस का वही उस प्रोविंस का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज़ नो। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की जो अथॉरिटी थी वो प्रोविंसेस की तरफ ट्रांसफ़र कर दी गई, प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दी गई। दिस ऑल्सो स्ट्रेंथेंड प्रोविंसेस एंड allowed them for independent revenue collection. ऑल्सो ये भी बड़ी बात है कि जो पहले पावर्स प्रेसिडेंट के पास हुआ करती थी वो तमाम पावर्स प्रेसिडेंट से लेकर जो है एग्जीक्यूटिव जो हमारे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है उनको ट्रांसफ़र कर दी गई, एंड प्रेसिडेंट वाज जस्ट मेड द सेरेमोनियल टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट। सो एक फेडरेशन का यही उसूल है, यही थ्योरी है, यही कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंट मस्ट बी द टाइटुलर हेड ऑफ स्टेट एंड द अथॉरिटी शुड लाई विद द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सो ये एक चंद बातें हैं जो कि फेडरेशन को फेवर करती हैं, जो फेडरेशन की सपोर्ट में है। इसीलिए कहा जाता है कि 18th अमेंडमेंट ने फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, बिकॉज मच ऑफ द पावर हैज़ बीन डिवॉल्व फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द प्रोविंसेस। सो दिस वाज ऑल आइडिया अबाउट द 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Let's end this video here. In next video we'll discuss another topic. Till then, take care. If it helped, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.